Good morning everyone. Welcome to the lecture of DRCS. In a last lecture, we have calculated example of overhead rectangular tank, right? So now we are studying about the overhead circular tank. So basically, overhead circular tanks are generally preferred up to a 7,50,000 liter capacity water. They are usually provided with a dome as a top cover and a flat bottom. So various elements of the circular overhead tanks are top spherical dome, top ring beam, a cylindrical wall, base slab, bottom ring beam, stacking column and brasses, and foundation. So when we are doing a design example of a circular overhead tank, we have to design these all elements for particular tank, right? So let's start how we can calculate a top spherical dome. So design principle for various elements are discussed below. So first we will take a top spherical dome. So here you can see in this figure, this is a circular water tank, this is a conical dome, this is top ring, circular side wall, this is a bottom ring, this is a bracing, this is slab, and this is a base slab, and these are the columns. So this is the components of a circular water tank, right? So first we will take a top spherical dome. So you can see this dome we have to design, right? So this T shows the thickness of a dome. It will varies from a 75 to 100 mm. D, so D is the diameter of the dome. So you can see in this figure D is this. R1, so what is R1? R1 is the radius of a dome. So you can see from here to here, this is the radius of a dome. H1, so H1 is a rise of a dome. So H1 preferably are 0.2 D, right? And W is a uniformly distributed load per unit area of a surface. So live load on a dome shall be taken as a 1.5 kilonewton per meter square. Now the reinforcement in a dome are designed for a maximum meridian thrust and a circumferential force, that means a hoop force. So how we can find a maximum meridian thrust? So for a maximum meridian thrust, we have an equation T1 is equal to WR1 upon 1 plus cos theta 1. It is a maximum at support. So T1 will be maximum at supports. T2 is a circumferential force, and we can also say hoop force. So for calculating a T2, we have this equation WR1 in a bracket cos theta 1 minus 1 upon 1 plus cos theta 1. So this circumferential force will be a maximum at the crown. Crown means the center or topmost portion of this dome. So radial bars are provided for the meridian thrust, and a circular hoops are provided for a circumferential force. Now second portion is a top ring beam, that is a B1. So the top ring beam is designed for a hoop tension. The meridian thrust T1 of a top dome at the level of a top ring beam B1 has two components. First is a vertical component and second one is a horizontal component. So for a vertical component we have equation T1 sin theta 1, and for a horizontal component we have equation T1 cos theta 1. So hoop tension in a ring will be Ft is equal to T1 cos theta 1 into D by 2, right? So this equation we have to take for a hoop tension in a top ring beam. Now the cross section area of a beam is determined by limiting the tensile stress in a ring beam to values specified in
IS 3370 Part 2 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ अ कॉन्क्रीट। सो वो IS कोड में आपको कॉन्क्रीट के ग्रेड के साथ सारे वैल्यूज़ बताई गई है। सो उसके लिए आपको टेबल नंबर 3.3 एंड टेबल नंबर 3.4 को फॉलो करना है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेस इन अ बीम, so this equation is given in IS 456-2000 page number 80. Here equation FT upon AC plus M into AST, this equation is given, right, for a tensile stress in a beam. Here AT is equal to AC plus M into AST, right? So what is AC? So AC is AG minus ASC plus M into AST. So we can put this value AG plus M minus 1 into AST instead of AT, right? For calculating a modular ratio, we have a equation 280 upon 3 sigma CBC. This equation we have used earlier also in a design of a different water tank, right? This equation is given at page number in IS code 3370 part 2 2009 table number 2. From this table we can find a sigma CBC. So value of sigma CBC for M30 is 10 Newton per mm square. So modular ratio will be 9.33 all the time. Third portion is a cylindrical wall. So a cylindrical wall may be a design for a cantilever action in a lower portion and a hoop action in a upper portion. Because of a continuity of the wall with a slab, the lower edge of the wall cannot be treated as fixed, right? उसको हम लोग fixed as a fix हम लोग treat नहीं कर सकते हैं। Along with the slab, cylindrical wall also rotates, ठीक है? स्लैब जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे सिलेंड्रिकल वॉल भी रोटेट होगी। द रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन अ कैंटिलीवर मोमेंट एंड इंक्रीज इन अ हुप एक्शन। द एग्जैक्ट एनालिसिस इन्वॉल्व्स द cylindrical shell analysis of a wall and plate analysis lab to find the rotation and ensure the same values to get a continuity. So finite elements analyze maybe a carry out. So in approximate method the lower portion of H third, मतलब आप ये देख रहे हो ये जो फिगर है उसका lower portion है H third उस और 1 meter whichever is will be higher were taken for a cantilever action. So हम लोगों ने आगे के एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया था. So entire depth H is considered for a hoop action, right? So moment will be a 1/2 into gamma W into H into small h, and that will be multiplied with the perpendicular distance. So moment will be a gamma W into H square divided by 6. So vertical steel is provided for the cantilever moment. So at this point a maximum hoop tension अगर हमें calculate करना है at a base of a wall, so हमारे पास equation है T is equal to gamma W into H into D by 2. So ये equation में gamma W है density of the water, H है height of a vertical wall, and D है diameter of the tank, right? So a minimum wall thickness of 200 mm is provided, right? हमें wall की thickness 200 mm प्रोवाइड करनी है. सो वहाँ पे अगर हमें AST फाइंड आउट AST प्रोवाइड करना है, सो इक्वेशन होगा T डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा ST. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट वैल्यू ऑफ AST एंड वी हैव टू प्रोवाइड दिस एरिया, राइट? जस्ट लाइक दिस हमें बेस ऑफ द वॉल और अदर कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट करने होते हैं वाइल वी आर डिज़ाइनिंग अ सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक. सो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको और भी आइडिया आएगा. जो कि मैं थियोरी में समझाऊंगी आपको उतना आइडिया नहीं आएगा, बट आप डायरेक्टली एग्जांपल करोगे तो आपको और आइडिया आएगा. तो लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल. डिज़ाइनिंग a overhead circular water tank with a flat bottom and supported on a ring beam with the following data, right? So capacity of the tank कितनी है? 4.5 lakhs लीटर है,
M30 कंक्रीट यूज़ किया है और Fe415 स्टील यूज़ किया है। यहाँ पे क्या बोला है कि डिज़ाइन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, हमें ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना है। आपको एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसमें आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिज़ाइन ओवरहेड सर्कुलर टैंक और उसके सारे पार्ट डिज़ाइन करो, राइट। आपको अलग अलग कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने को बोलेंगे। कभी आपको बोलेंगे टॉप स्पेरिकल डोम एंड टॉप रिंग बीम करो, या फिर आपको बोलेंगे बेस स्लैब करो, सिलेंड्रिकल वॉल करो, बॉटम रिंग बीम करो, सो बॉटम के आप कॉलम करो या ब्रेसिस डिज़ाइन करो। सो जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें से आपको कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करने को बोलेंगे। सो यहाँ पे हमें कौन से कंपोनेंट्स करने हैं, तो सबसे पहला है टॉप स्पेरिकल डोम, सेकेंड है टॉप रिंग बीम और थर्ड है सिलेंड्रिकल वॉल। फोर्थ आपको डिज़ाइन करना है बेस स्लैब एंड फिफ्थ आपको करना है बॉटम रिंग बीम, ठीक है। इतने आपको डिज़ाइन करने हैं। सो सबसे पहले आपको कैपेसिटी ऑफ द टैंक लाख लीटर में दिया है, ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 4.5 लाख लीटर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो वो हो जाएगा 450 मीटर क्यूब। अब हम लोग डायमीटर ऑफ द टैंक अज्यूम करेंगे, राइट। सो ये डायमीटर ऑफ द टैंक आपको 10 to 15 mm के बीच में अज्यूम करना है। सो यहाँ पे आपको अज्यूम किया है D = 12 mm। सो अब हम लोग ये अज्यूम करने के बाद हम लोग हाइट फाइंड आउट करेंगे। सो हमें पता है वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर कोई भी टैंक का, ठीक है, हमें वॉल्यूम पता है यहाँ पे कि कितने वॉल्यूम की हमें डिज़ाइन करनी है। सो यहाँ पे 450 मीटर क्यूब वॉल्यूम की टैंक हमें डिज़ाइन करनी है। सो यहाँ पे वॉल्यूम = π/4 d² × h, ये इक्वेशन के अंदर हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे और h को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रिलिमिनरी डायमेंशंस फाइंड आउट करने होते हैं, जिसमें आ गया है डायमीटर, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 450 π/4 d, यहाँ पे 12 हमने अभी लिया, तो उसके ऊपर से हम लोग h फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे h की वैल्यू हमें 3.97 मिल रही है, जिसको मैं सिमिलर करके 4 कर लूँगी। सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, लेट अज्यूम अ डायमीटर ऑफ अ बॉटम रिंग 0.75 d, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बॉटम रिंग इतनी होगी 0.75 × d। d हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे लेना है, d हमने 12 mm लिया है। सो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी 0.75 × 12। सो हमें कितना मिल गया, 9 मीटर मिल गया। अब हम लोग फाइनल डायमेंशंस हमने कौन से फाइंड आउट किए हैं वो देख लेंगे। सो डायमीटर ऑफ द टैंक हमने लिया 12 मीटर, हाइट ऑफ द टैंक हम लोगों ने ली 4 मीटर, डायमीटर ऑफ द बॉटम रिंग लिया 9 मीटर। नाउ लेट्स अज्यूम अ रिंग बीम इज सपोर्टेड ऑन अ 6 इक्वली स्पेस्ड कॉलम। ये वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम कर ली है, ठीक है, कि 6 डिफरेंट कॉलम के बीच में ये बीम डिवाइड हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ अ टॉप डोम, ठीक है, ऊपर के डोम की हम डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने जो डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए हैं वो यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा h था 4, डायमीटर d था 12, ठीक है, ये सारी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग सबसे पहले h1 फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैंने आपको आगे थियोरी में बताया था कि h1 कितना होगा, 0.2 d जितना, ठीक है। सो 0.2 × d, सो यहाँ पे 0.2 × 12 हमारा h1 आएगा 2.4 मीटर। आप फिगर में देख रहे हो कि ये 2.4 मीटर है, ठीक है, h1। ये हाइट है हमारी 4 मीटर। ये बेस स्लैब हो गया, ये बॉटम रिंग बीम है, ये टॉप रिंग है और ये है सिलेंड्रिकल वॉल। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2r - h1 × h1 = d/2 × d/2। वो कैसे, ये फिगर पे से किया है, ठीक है, ये फिगर पे से 2r - h1 × h1 = d/2 × d/2। सो ये इक्वेशन पे से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 8.7 मीटर। r मिलने के बाद हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि sin थीटा = 6/8.7, क्योंकि यहाँ पे मैंने r ये 8.7 फाइंड आउट कर लिया है। तो sin थीटा = 6, बिकॉज ये 6 हो गया, क्योंकि टोटल है 12, तो ये 6 हो गया।
6 डिवाइड बाई दिस हमें मिल जाएगा ये आर की वैल्यू मिलने के बाद थीटा फाइंड आउट कर दिया, तो सो थीटा इज हमें कितना मिला 43.60। सो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा 0.724। नाउ अज्यूम द थिकनेस ऑफ द डॉम 100 mm, आप 100 120 भी अज्यूम कर सकते हो। सो अज्यूम करने के बाद हम लोग सेल्फ वेट ऑफ द डॉम फाइंड आउट करेंगे, जो यहाँ पे है 0.10 × 25 मतलब कि 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लाइव लोड हम लोगों ने अज्यूम किया है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो मैंने आपको आगे थियोरी कराते टाइम भी बताया था कि वी हैव टू अज्यूम अ लाइव लोड 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। नाउ आवर टोटल वेट विल बी 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेरिडियन फोर्स। ये इक्वेशन मैंने आपको थियोरी में बताया था कि T1 इज इक्वल टू WR/1 प्लस कॉस थीटा। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे W हो है 4, R हमने फाइंड आउट किया 8.7, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 43.60 डिग्री। सो हमारा T1 कितना हो जाएगा 20.18 किलोन्यूटन पर मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेरिडियन स्ट्रेस। सो ये जो वैल्यू है डिवाइड बाय उसका एरिया ले लेंगे, मतलब 1000 इंटू थिकनेस कितनी अज्यूम की थी 100, ठीक है। सो मेरिडियन स्ट्रेस हमें कितनी मिल गई 0.202 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब परमिसिबल स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट इन अ डायरेक्ट फॉर M30 कॉन्क्रीट के लिए कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कहाँ से हमें मिली? सो IS 3370 पार्ट 2 2009 के टेबल नंबर 2 में से हमने ये वैल्यू ली है। ये जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू से ग्रेटर है, मतलब कि सेफ है, राइट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हुक फोर्स। सो हुक फोर्स फाइंड आउट करने का इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया था आगे की थियोरी फॉर्म में। सो ये इक्वेशन है WR cos थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0.724 जो हमने आगे फाइंड आउट की थी। R है 8.7, W है 4। सो हमारा T2 हमें कितना मिला 5 किलोन्यूटन पर मीटर। अब ये तो हमें मिला हुक फोर्स। अब स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे फोर्स अपॉन दिस 100 × 1000। सो ये करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 0.05 जो 8 न्यूटन पर mm से कम है, मतलब कि अगेन हुक स्ट्रेस ये भी हमारा सेफ है। ये दोनों सेफ होने के बाद हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया क्या है हमारा 0.24% प्रोवाइड करना पड़ेगा। So here we will provide a 0.24% steel in this dome. So ASC will be a PTBD upon 100. So here PT is a 0.24, B is a 1000, D is a 100, right, divide by 100. So AST हमारा कितना मिल गया 240 mm स्क्वायर। सो AST 240 mm स्क्वायर है तो हमें प्रोवाइड करना है एरिया ऑफ द स्टील। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे SP16 में जाके देखेंगे कि 240 से ज़्यादा जो AST है वो लेके हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 8 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। सो हमारा प्रोवाइडेड AST कितना है 251 mm स्क्वायर इन रेडियल एंड सर्क्यूमफरेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। सो ये क्या हो गया डिज़ाइन ऑफ अ टॉप डोम हो गया। अब आगे की सारी डिज़ाइंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको अभी सिखाया है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी करेंगे डिज़ाइन ऑफ नेक्स्ट सिलेंड्रिकल वॉल, बेस स्लैब एंड टॉप रिंग बीम। आज हम लोगों ने क्या डिज़ाइन किया टॉप स्पेरिकल डोम। सो टॉप स्पेरिकल डोम में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सारे डायमेंशंस फाइंड आउट कर देने हैं कि T फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ अ डोम फाइंड आउट करना है, फिर H1 फाइंड आउट करना है, स्मॉल h1, और लोड फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर लोड कितना हो रहा है। ये सारी डिटेल फाइंड आउट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग T1 एंड T2 फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें T1 क्या है मेरिडियन थ्रस्ट, उसका इक्वेशन है WR1/1 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। और T2 क्या है सर्कमफरेंशियल फोर्स, जिसका इक्वेशन है WR1 cos थीटा 1 माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा 1।
ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें मिलने के बाद हम लोग हुप स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेस मिली है वो परमिसिबल स्ट्रेस जो कंक्रीट की है डायरेक्ट कंप्रेशन की, मतलब आपको जो भी ग्रेड का कंक्रीट दिया है वो ग्रेड का कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस आपको देखनी है टेबल नंबर 2 में से, IS 3370 पार्ट 2 2009 के, ठीक है। वो जो आपको मिल रही है उससे अगर ये कम है मतलब कि आपकी जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है यहाँ तक की, और सेफ़ ये अगर सेफ़ आता है तो हमें क्या करना है, मिनिमम रेइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है टॉप पोर्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन।